اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم عربی گرامر کے سبق نمبر 15 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا مفعول کی ضرورت یا عدم ضرورت کے لحاظ سے فعل کی تقسیم کیا ہے، فعل کی اقسام کون کون سی ہیں۔ اس لحاظ سے فعل کی دو اقسام ہیں، ایک ہے فعل لازم اور ایک ہے فعل متعدی۔ اب پہلی قسم جو کہ فعل لازم ہے، اس کی ہم تعریف اور اس کی ہم مثال سمجھتے ہیں۔ فعل لازم کو انگلش میں انٹرانزیٹو ورب بھی بولتے ہیں۔ فعل لازم کی تعریف یہ ہے، وہ فعل جو صرف فاعل کو چاہتا ہے اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سینٹنس جب آپ بنائیں گے تو اس سینٹنس کے اندر مفعول بھی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوگی، فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہی مکمل ہو جائے گا۔ تو جب جملہ مفعول کو ذکر کیے بغیر سمجھ میں آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل لازم ہے، یعنی اس میں ایک فعل ہوگا اور ایک فاعل ہوگا۔ بس ان دو کے ساتھ جب جملہ مکمل ہو رہا ہو تو اسے فعل لازم بولتے ہیں۔ آپ بس آسان لفظوں میں اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے، اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فعل لازم کی مثال، ذہب تلمیذ۔ اب اس میں ذہب کیا ہے؟ ذہب فعل ہے، تلمیذ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ آپ اس کا ترجمہ کریں گے، ذہب گیا، تلمیذ اسٹوڈنٹ، شاگرد گیا۔ تو اب یہاں آپ دیکھیں، ذہب فعل ہے، تلمیذ فاعل ہے، بات مکمل سمجھ میں آ گئی ہے، کوئی اضافی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ ذہب فعل لازم ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں فعل متعدی کو، کہ فعل متعدی کیا ہے۔ فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، یعنی مفعول ذکر کیے بغیر جملہ مکمل ہی نہیں ہوتا، سننے والے کو جملے کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ جب سننے والے کو جملے کی سمجھ ہی نہیں آئے گی مفعول کو ذکر کیے بغیر، تو ہم کہیں گے کہ یہ فعل متعدی ہے۔ یہ فعل متعدی دونوں کو چاہتا ہے، صرف فاعل کو نہیں چاہتا، مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ فعل لازم صرف فاعل کو چاہتا ہے، فعل متعدی فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے۔ مثال آپ کے سامنے آئے گی تو آپ مکمل طور پر سمجھ جائیں گے۔ فعل متعدی کی مثال یہ ہے، شارب التلمیذ ماء۔ شاربہ اس نے پیا، التلمیذ اسٹوڈنٹ، شاگرد، ماء پانی۔ اب آپ اس میں غور کریں، اگر میں کہوں شارب التلمیذ اسٹوڈنٹ نے پیا، تو بھئی سوال ہوگا، ذہن خود بخود پوچھے گا، یہ جملہ کوئی بھی شخص سنے گا تو آپ سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جائے گا، بھئی اس نے کیا پیا؟ وہ جو چیز پی گئی تھی وہ کیا تھی؟ فعل ہے پینا، فاعل ہے التلمیذ، تو پیا کیا گیا؟ جو پیا گیا ہے وہ ہے مفعول، یعنی جس پر کام واقع ہوا ہے وہ مفعول ہے۔ تو تلاش کرنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، سوال پیدا ہوگا کہ کیا چیز پی گئی ہے؟ وہ لسی تھی، وہ دودھ تھا، وہ کوئی شربت تھا، وہ کوئی جام تھا، وہ کیا چیز تھی بھائی جو پی گئی ہے؟ سوال پیدا ہوگا۔ یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا، یہ جملہ ادھورا ہوگا، ناقص ہوگا مفعول کے بغیر۔ تو جس جملے کے اندر فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پیش آ جائے اسے بولتے ہیں فعل متعدی۔ اب دیکھیں، ثابت یہ ہوا اس ساری گفتگو سے کہ شاربہ کو ہم فعل لازم نہیں کہہ سکتے، انٹرانزیٹو ورب نہیں مانیں گے شاربہ کو۔ شاربہ کو ہم ٹرانزیٹو ورب مانیں گے کہ شاربہ فعل متعدی ہے،
ज़हाबा फ़ेल लाजिम है और शारिबा फ़ेल मुताद्दी है। अब ये तो आसान सी तारीफ़ें थीं और आसान सी मिसाल थी, लेकिन जब हम कुरान मजीद के अंदर गौर करते हैं, किसी भी अरबी इबारत के अंदर गौर करते हैं, तो वहाँ पर ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये फ़ेल क्या फ़ेल मुताद्दी है या फ़ेल लाजिम है। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी की पहचान इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जब आपको ये बात समझ आ गई कि ये फ़ेल लाजिम है, तो आपको जुमले के अंदर मफ़ऊल तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि फ़ेल लाजिम के साथ मफ़ऊल का ज़िक्र होता ही नहीं है। फ़ेल लाजिम होता ही वो है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहता है। लिहाजा आप जब किसी भी ऐसे फ़ेल को देखेंगे जो कि फ़ेल लाजिम होगा, तो उसके साथ आपको मफ़ऊल तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ तलाश करेंगे फ़ाइल को। इसी के साथ एक बात और भी मैं आपकी खिदमत में रख दूं कि जब भी फ़ाइल आएगा किसी भी जुमले के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर जब भी फ़ाइल आएगा, तो उसके आखिरी हरफ के ऊपर पेश ही आएगी। पेश भी आ सकती है, दो पेशें भी आ सकती हैं जिन्हें तनवीन कहा जाता है। और इसी तरह जो मफ़ऊल होगा, डेफिनेटली हर सूरत में मफ़ऊल के ऊपर ज़बर ही आएगी या दो ज़बरें आ जाएंगी। जैसा आप इस मिसाल के अंदर भी अगर आप गौर करें, शारिबत तिलमीज़ु माअन, आप इसमें गौर करें, तिलमीज़ु की ज़ाल के ऊपर पेश है, माअन के आखिर में जो हमज़ा आ रहा है, उस हमज़ा के ऊपर भी ज़बर आ रही है, एक की बजाय दो ज़बर आ रही है। तो बस साबित ये हुआ कि तिलमीज़ यहाँ फ़ाइल बनेगा क्योंकि उसका आखिरी हरफ मरफू है, और माअन के आखिर में दो ज़बरें हैं, वो मफ्तू है, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो मफ़ऊल है। अब मैं आपकी खिदमत में रखूंगा ये बात कि फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी की अगर हमने आसानी के साथ पहचान करनी हो, तो हम इसकी बाआसानी पहचान कैसे कर सकते हैं। इसके लिए तीन तरीके मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। उन तीन तरीक़ों के साथ आप बड़ी ही आसानी के साथ फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी के अंदर डिफरेंस तलाश कर लेंगे। फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुताद्दी की पहचान का तरीका नंबर 1, आप उस फ़ेल का तर्जमा करें। अगर आप तर्जमा कर सकते हैं तो आप उस फ़ेल का तर्जमा करें। जब आप तर्जमा करेंगे तो उस तर्जमे के अंदर वो आए, वो जब तर्जमे के अंदर वो आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ़ेल लाजिम है। और अगर उस फ़ेल के तर्जमे के अंदर वो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि तर्जमे के अंदर उस या ने का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फ़ेल मुताद्दी है। आसान लफ्ज़ों में तर्जमे के अंदर वो आए तो फ़ेल लाजिम होगा, और तर्जमे के अंदर उस या ने आए तो फ़ेल मुताद्दी होगा। मिसाल देखिएगा, आपके सामने बात वाज़ेह हो जाएगी। अब आप देखें, लफ्ज़ है जाआ, अरबी का लफ्ज़ है जाआ। जाआ का तर्जमा जब आप करेंगे तो इसका तर्जमा होगा वो आया। ये बात भी आप सब हज़रात नोट कर लीजिए, ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब भी अरबी की ज़ुबान के अंदर फ़ेल आता है तो उसके अंदर हुआ की जो ज़मीर होती है वो छुपी होती है, यानी फ़ाइल उसके अंदर मौजूद होता है। मसलन फ़ेल है ना जाआ, तो अब जाआ का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ में हुआ की ज़मीर मौजूद है, हुआ जिसका माना होता है वो। तो अब आप तर्जमा करेंगे, जाआ का तर्जमा आप वो आया ही करेंगे। इसके तर्जमे के अंदर उस या ने नहीं आ सकता। मसलन उसने आया नहीं करेंगे आप तर्जमा इसका, उसने आया तर्जमा बिल्कुल गलत होगा, बेतुक्का होगा, ला यानी होगा, एक मुहमल सा जुमला बन जाएगा। लिहाजा जब तर्जमे के अंदर वो आ गया तो इसका मतलब यह है कि वो फ़ेल लाजिम है, उसको सिर्फ फ़ाइल की ज़रूरत है, उसे मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं है। दूसरी मिसाल देखिएगा, नासरा। नासरा का माना है उसने मदद की। अब आप गौर करें, नासरा के अंदर उस भी आ गया है, ने भी आ गया है, लिहाजा हम यहाँ मानेंगे कि नासरा जो है ये फ़ेल मुतअद्दी है। आपको बखूबी ये बात समझ आ चुकी होगी कि वो आए तर्जमे के अंदर तो फ़ेल लाजिम, उस या ने आए जुमले के अंदर तर्जमे के अंदर तो फ़ेल मुतअद्दी है। अब हम देखते हैं तरीका नंबर 2 को। आप फ़ेल के साथ इन ज़मीरों में से कोई भी ज़मीर लगा दें फ़ेल के आखिर में, हु, का, नी,
ना, ये तमाम ज़मीरें हैं। आप इसमें से कोई भी ज़मीर फ़ेल के आखिर में लगाएं। जब आप कोई भी ज़मीर फ़ेल के आखिर में लगाएंगे तो आप उसका तर्जमा करें। जब तर्जमा करेंगे, अगर तर्जमा सही ना हो तो फ़ेल लाजिम होगा, और अगर वो तर्जमा सही हो तो इसका मतलब ये है कि वो फ़ेल मुताद्दी होगा। मिसाल से बात वाज़ेह हो जाएगी। मिसाल देखिएगा, आपने जा आ के साथ लगाया हु का माना होता है उसने। अब जा आ का माना है वो आया। अब देखिएगा, जा आ हु का माना क्या बनेगा, वो उसको आया। तर्जमा गलत हो गया है, सही नहीं हुआ, लिहाजा हम मानेंगे जा आ फेल लाजिम है। आप कोई और ज़मीर लगा लें, जा आ का। जा आ का माना है वो आया, का का माना है आप या तू या तुझे। मसलन इसका तर्जमा करते हैं। अब जा आ का, जा आ का तर्जमा होगा वो आपको आया, वो तू आया। तर्जुमा बिल्कुल गलत हो गया है, बेतुक्का सा तर्जुमा हो गया है, लिहाजा हम मानेंगे ये फेल लाजिम है। जा आ नी, वो मुझे आया, या जा आ ना, वो हमें आया। तर्जुमा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये तर्जुमा सही ना होने की बुनियाद पर पता चल गया कि जा आ फेल लाजिम है। एक और बात भी इसी के साथ बता दूं, जो फेल लाजिम होता है वो हर जगह फेल लाजिम ही रहता है। यानी ये नहीं होता कि लाजिम जो है वो कभी कभी लाजिम हो और कभी कभी मुताद्दी हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो लाजिम है वो लाजिम ही रहेगा, जो मुताद्दी है वो मुताद्दी ही रहेगा। अब आप नासरा की मिसाल देख लें। नासरा के साथ आप हु को अटैच करें। नासरा हु, नासरा का माना है उसने मदद की, हु का माना है उसकी। बिल्कुल सही तर्जुमा हुआ है, उसने उसकी मदद की। नासरा नी, उसने मेरी मदद की। नासारा उसने मदद की, नी मेरी, उसने मेरी मदद की। नासारा ना, उसने हमारी मदद की। चूंकि सब ज़मीरें जो हमने अटैच की हैं, तर्जमा बिल्कुल सही आ रहा है, लिहाजा हम मानेंगे कि नासारा फेल मुताद्दी है। नासारा हु, नासारा का, नासारा नी, नासारा ना। उसने उसकी मदद की, उसने आपकी मदद की, उसने मेरी मदद की, उसने हमारी मदद की। तो सब जुमलों के अंदर तर्जुमा सही रहा, लिहाजा हम मानेंगे ये फेल मुताद्दी है। आखिरी तरीका नंबर 3 देखिएगा। फेल से पहले हरफे इस्तिफहाम माज़ा लगाना सही ना हो तो फेल लाजिम होगा। फेल से पहले हरफे इस्तिफहाम माज़ा लगाना सही हो तो फेल मुताद्दी होगा। माज़ा लगा दें आप, फेल से पहले माज़ा लगा दें और फिर देखें कि वो माज़ा लगाना सही है या गलत है, दुरुस्त है या नादुरुस्त है। तो जब आपने माज़ा लगाया, अगर माज़ा लगाना सही ना हो तो फेल लाजिम होगा, और माज़ा लगाना सही हो तो फेल मुताद्दी होगा। मिसाल देखिएगा, मिसाल के साथ बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मसलन हमारे पास वही मिसाल जो कि पहले थी, जा आ का माना है वो आया। इसके शुरू में आप लगा दें माज़ा। माज़ा का माना है किसको। माज़ा जा आ माना बनेगा किसको आया। बिल्कुल बेतुका तर्जुमा हो गया, गलत तर्जुमा हो गया। लिहाजा जा आ से पहले माज़ा नहीं आ सकता, तो हम मानेंगे कि ये फेल लाजिम है। इसी तरह देखिएगा, नासरा से पहले माज़ा लगा दें। माज़ा नासरा माना क्या बनेगा, किसने मदद की। माज़ा किसने, नासरा मदद की। माज़ा नासरा किसने मदद की, तर्जुमा बिल्कुल सही होगा और माज़ा लगाया जा सकता है यहाँ पर, लिहाजा साबित ये हुआ कि नासरा फेल मुताद्दी है। आप देखें ना, माज़ा जा आ, ये क्यों गलत हो रहा है। ये गलत इसलिए हो रहा है कि जा आ से पहले आप ये तो पूछ सकते हैं कौन आया, कब आया, कहाँ आया, ये बातें तो पूछी जा सकती हैं। किसको आया, ये कोई सही बात ही नहीं हो रही, बेतुक्की सी लायानी सी बात हो रही है। लिहाजा हम मानेंगे जा आ फेल लाजिम है। नासरा से पहले माज़ा सूटेबल है, दुरुस्त लग रहा है। किसकी मदद की,
میں نے کوشش کی ہے کہ فعل لازم اور فعل متعدی کی پہچان کی آسان ترین آپ کو علامتیں بتا دوں، طریقے بتا دوں۔ 3 طریقے میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، اس کو بخوبی سمجھیے گا، اس پر غور کیجئے گا، اس کی مزید پریکٹس کیجئے گا اور افعال کو تلاش کیجئے گا، اور ان افعال کو تلاش کر کے جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ یہ فعل لازم بن رہا ہے یا فعل متعدی بن رہا ہے۔ آج کی کلاس کا اختتام اسی پر کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ سبق کے اندر میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا فعل معروف اور فعل مجہول۔ اللہ کریم ہم سب حضرات کی عربی زبان کو سمجھنے میں مدد فرمائے، ہمارے ذہن کو کشادگی، وسعت عطا فرمائے، انشراح صدر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم